Hello everyone, welcome to this session, and in this session we are going to cover all or everything in detail about John Bunyan, the Progress. Pilgrim Progress. Okay, so you have all aware about, first of all we have our introduction, then we will have characters list, then we will have plot, then we will have some very important details that you have to cover in your examination. So now let's see about the introduction about the John Bunyan. So John Bunyan was born in 1628 and died in 1688. 1688, who born? If you have seen, if you have watched my previous session, then the answer is Alexander Pope. Pope was born in 1788 when the John Bunyan dies. When John Bunyan dies, Alexander Pope born. Okay, so please remember it. Okay. Pope, and he is born in 1628. So he is English preacher, writer, best known for religious allegory, the Pilgrim Progress. Okay. So let's see about his life कि इन्होंने कैसे किए और क्या क्या वर्क्स लिखे. सो लेट्स टॉक अबाउट दी बर्थ. सो इनका जन्म कहाँ पे होता है? ही वॉज बोर्न इन एलेस्टो. वेयर इज बोर्न? एलेस्टो, बेड्सफोर्डशायर in 1628. He belongs to a very poor family. इनकी पुअर फैमिली और बहुत ही डिफिकल्ट अर्ली लाइफ थी, जस्ट लाइक Alexander Pope. Alexander Pope have also very poor health, but he is not so much poor because his father was a merchant. But this is not the case with the John Bunyan. He is really very belongs to very really poor family. So if he is very poor, so you can imagine how it is too difficult, all the expenses, education. See, the time when John Bunyan was writing, it's really very difficult to manage all the expenses of a household because there were so many children in a single family. Okay, so there was no concept such like a nuclear family. They live in a joint family and they have so many responsibilities, and to manage all these responsibilities they must have a fund. But John Bunyan's family is not able to provide the basic necessities of the life to the John Bunyan. So that is the reason why he is impacted by so much. See, if a great writer is born, there may be a very important reason behind it. Either he has a poor health, either he has a poor family, or there may be something which is very much disturbance, which creates so many disturbances in his life, and he suffer a lot from it. So that is the reason why a major writer writes upon that particular topic. Okay, so now let's see. He also had a military service. Okay, so in this military service, what he done? As he is very poor, and the age of 16 he joined the parliamentary army. Okay, और ये इंग्लिश जो सिविल वार होती है ये इसमें भाग भी लेते हैं. Okay, he joined at the age of 16 in the parliamentary army in the English Civil War. और ये 3 साल वहाँ पे काम करते हैं, और ड्यूरिंग हिज एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस हिज राइटिंग्स. अब देखिए, ये गरीब थे, अब क्या करते? इंग्लिश सिविल वार हो रहा था, 16 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिए, हेल्थ हाइट अच्छी होगी, मिलिट्री में चले गए, 3 साल का एक्सपीरियंस लिखा. अब ये जो इन्होंने एक्सपीरियंस हुआ, ये अब कहाँ पे इन्फ्लुएंस करने लगा? इनकी राइटिंग्स को. ये भी हमें इनकी वर्क में देखने को मिलेगा. अब नाउ जो ये जॉन बनियन है, इनको ट्रेड ऑफ थिंकर भी कहते हैं. अभी ट्रेड ऑफ थिंकर कैसे हुए? जब ये वापस से घर आते हैं, घर पे कहाँ पे जन्म, जहाँ पे इनका जन्म हुआ, ये रिटर्न आते हैं कहाँ से? मिलिट्री सर्विसेज से आते हैं. ये बहुत ही सोचने विचारने वाले आदमी बन जाते हैं, थिंकर. ओके,
a metal worker you can say, a trade he has learned from his father. और इनके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो फादर थे ये क्या करते थे, ये एक मेटल वर्कर थे, कौन, इनके फादर, और इन्होंने एक व्यापार सीखा इनके फादर से, ठीक है, और ये सोचते थे, ये थिंकर तो बन गए थे, बट इन्होंने व्यापार सीखा, अब आर्मी के बाद रिटायर हो गए, अब क्या करेगा, कुछ तो काम करेगा, सो दैट इज द रीजन वाई. सो अब जो यहाँ पे रिलीजन था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनको इन्होंने कैसे इम्पैक्ट किया और फिर इन्होंने क्या लिखा है ऐसा कि ये इतने ज़्यादा फेमस हो गए. सो द आंसर इज स्पिरिचुअल कन्वर्जन. ओके, सो डीप रिलीजियस कन्वर्जन इज देयर. ओके, सो ये किसी और सेक्ट से बिलोंग करते होंगे, इनका कन्वर्ट हुआ सबसे पहली बात. ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, और इन्हीं के कारण ये बन गए प्रीचर. हु इज प्रीचर? प्रीचर जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है, क्या सही है क्या गलत है. ओके, सो प्रीचर इज समवन हु गाइड आवरसेल्फ. ओके, सो हिज एक्सपीरियंस एज अ सोल्डर एंड हिज स्ट्रगल विद दिस सिन, जो इन्होंने पाप किए. अब आप लड़ाई कर रहे हैं इंग्लिश सिविल वॉर में, आप जरूर किसी ना किसी को तो मारे ही होंगे, देन इट इज़ अ पाप. रिडम्पशन आर इंटीग्रल टू हिज स्पिरिचुअल जर्नी. और आपने अशोका का नाम सुना होगा. आफ्टर द डेथ ऑफ द 99 brothers, the war of the Kalinga, Ashoka left everything behind. Okay, and he's become a very much spiritual beings. Just like that only, John Bunyan was the same. Okay, so इन्होंने पहले मिलिट्री ज्वाइन की, 3 साल वहाँ पे अपने दिए, खून खराबा देखा, और फिर लास्ट में जब वो घर की ओर लौटे, इन्होंने अपने पापा से अपना बिजनेस सीखा और ये एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल गए. नाउ लेट्स सी व्हेन ही इज प्रीचिंग एंड प्रीचिंग. अब जब ये गाइड करेंगे लोगों को, तो अब ये सबको तो पसंद आने नहीं वाला है, तो इसके लिए इनको क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी, इम्प्रिजमेंट. ओके, सो अब जो रिलीजियस अथॉरिटी है उनके खिलाफ में बोलेंगे या फिर कुछ सिखाएंगे तो इम्प्रूवमेंट होगी ना. और इनका कब हुआ अरेस्ट? 1660 में हुआ, फॉर प्रीचिंग विदाउट अ लाइसेंस एंड स्पेंड 12 years in jail. In assistant professor examination 2020 or in SET examination, I am not remembering the correct examination, but a question is there. Name a writer who lived in a jail, spent 12 years of impeachment, 12 years in jail. Name the writer. Okay, so the answer is John Bunyan. There are 4 options. Okay, so John Bunyan was the correct answer. So now let's see, while he was in the jail, he have wrote so many works. So let's see what are the works what he did. So these are the works which is written in the imprisonment. So our work mentioned in the assistant professor syllabus is the Pilgrim Process, and when it is written in 1678, and it is written in the jail while he was imprisonment for the 12 years. इनके पास लाइसेंस नहीं था और ये प्रीचिंग कर रहे थे, which is an अपराध. So that is the reason he got the jail, and before this work he have wrote another work in 1660, and I have already told you when he got the jail. Okay, so grace abounding to the chief of sinners. ठीक है, और ये एक ऑटोबायोग्राफी है. मैं इसके डीप में तो नहीं जाऊँगा बिकॉज इट इज़ नॉट मेंशन इन सिलेबस. ओके, बट लेट्स हैव एन आइडिया. दैट इज़ द रीज़न वाई आई मेंशन सो मच. मैंने आई हैव समराइज द पॉइंट. सो 1666 में ये वर्क लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी. इफ देयर इज अ क्वेश्चन, नेम द ऑटोग्राफी ऑफ जॉन बनियन, द आंसर इज ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स. This is for your SET or NET examination if you are preparing. Okay, you can also expect the same questions in MPPSC assistant professor examination. Okay, और इन्होंने ऑटोबायोग्राफी में बताया है, अपने डिटेल्स दिए हैं स्ट्रगल्स के बारे में, सिन के साथ, इस कन्वर्शंस के बारे में बताया है. ओके, इंसिडेंट ड्यूरिंग द मिलिट्री सर्विस viewed as an act of defense grace. He has saved from death when fellow soldier took his place on a mission and was shot to the death. उनकी एक सोल्डर ने जान बचाई थी, अच्छे दोस्त बन गए होंगे.
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वर्क के बारे में कि उस व्यक्ति को इन्होंने महान दर्शाया है, उसकी इसकी जान बचाई है. दिस अकॉर्डिंग टू बनियन वॉज द एविडेंस ऑफ गॉड्स मर्सी. और यहाँ से इनका हृदय परिवर्तन होता है और ये पूरी कहानी इनकी यहाँ से शुरू होती है. दैट इज़ द रीज़न वाई आई हैव मेंशन दिस थिंग हियर. नो वन गोना टेल यू दिस थिंग, only you are getting this thing in the Sri Sundaram IAS Academy platform, so please note it down. Okay, so now let's see work the pilgrim process 1678. Okay, सबसे पहले बात करेंगे तो ये एक रिलीजियस एलेगरी है. ओके, और ये एक स्टोरी बताती है. किसकी स्टोरी बताती है? क्रिश्चियन प्रोटोगनिस्ट होता है जिसकी जर्नी बताते हैं ये. और इसका दो एंड होता है, ठीक है. यहाँ से कहानी शुरू होगी और यहाँ तक ख़त्म होगी. इस सिटी का क्या नाम है? सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन. सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन टू कैलेस्टिरियल सिटी. और यहाँ पे इनकी जर्नी खत्म होगी. कहाँ पे खत्म होगी? कैलेस्टिरियल सिटी पे. दिस इज द जर्नी अबाउट द पिलग्रिम प्रोसेस प्रोग्रेस. ओके, सो अब यहाँ से जर्नी शुरू होगी, वहाँ तक जाएंगे तो आपको पता ही होगा तो क्या होगा. चैलेंजेस आएंगे. वेरी गुड. चैलेंजेस आएंगे. टेम्पटेशन, फिगर्स रिप्रेजेंटिंग वर्च्यूज एंड वर्सेस, मतलब बहादुरी दिखेगी हमें यहाँ पे, है ना. किसी चीज़ का पालन होगा, किसी चीज़ का उल्लंघन होगा, सब कुछ हमें दिखेगा. अब चलिए ये सब इन्होंने बात अपन आगे करेंगे, अभी बहुत कुछ आने वाला है. उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि जब इनको रिलीज मिलता है और इनकी जो लिटिल लाइफ है ये कैसी है. ओके, I have already told you imprisonment in 1677. Okay, release in 1772. और इनको लाइसेंस भी मिल जाता है प्रीच का. ये वर्क की वजह से. ये वर्क इतना फेमस हो गया ना, ठीक है. जब ये वर्क इन्होंने लिखा था बट पब्लिश इनके बाद में हुआ था, ये बाहर आ गए थे, फिर इन्होंने ये वर्क पब्लिश कराया. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट. ये बाहर आते हैं, अपना बहुत वर्क लिखते हैं, उसको रिपब्लिश करते हैं, और भी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं. सरमन्स होते हैं बहुत सारे. ओके, हाईली रिगार्डेड इज अ सिग्निफिकेंट फॉलोइंग. ओके, और बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं. दैट्स ऑल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेथ एंड द लेगेसी, एंड देन वी विल हैव आवर वर्क द पिलग्रिम प्रोसेस पार्ट 1. देयर इज अ 2 पार्ट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो लेट्स टॉक अबाउट द डेथ. और इनकी डेथ होती है 1688. आई हैव टोल्ड यू. एंड हियर हु इज बॉर्न? अलेक्जेंडर पोप इज बॉर्न एट द एज ऑफ 59 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है. और कैसे डेथ होती है? ये बीमार पड़ जाते हैं. ओके, जब ये जर्नी लंदन की तरफ जर्नी कर रहे होते हैं तो ये बीमार पड़ जाते हैं और फिर वहीं पे डेथ हो जाती है. और एक बात देख लेते हैं कि इनको बरीड कहाँ किया गया था. तो बर्नहिल फील्ड्स. So there may be a questions, when was John Bunyan was buried? The answer is Burnhill Fields. Okay, cemetery in London. Okay, if I talk about the legacy, the important work is the Pilgrim Process, and it is published in when it is published, and it is published in 1778. Okay, part 1, 1678. So please remember all these date. Okay, when our writer is born, major works, when it is written, there is two written and published.
See, there are so many works which is written in different period of time and published in different period of time. You have to take care of it. Okay. So let's see, जो हमारा फुल टाइटल है इस वर्क का वो क्या है. तो फुल टाइटल है द पिलग्रिम प्रोग्रेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू डेड विच इज कम डिलीवर्ड अंडर द सिमिलिट्यूड ऑफ अ ड्रीम. दिस इज द फुल टाइटल ऑफ दिस वर्क. ओके, जो पब्लिशर थे वो थे नेथाइल पॉन्डर, लेटर कॉल्ड बनियन पॉन्डर, रिटन बाय जॉन बनियन. जनवरी की बात करें तो क्रिश्चियन एलेगरी है, फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ है 1700 पार्ट 1 और 1684 में इसका पार्ट 2 होता है. कितने साल बाद, हाउ मेनी ईयर्स लेटर, 80 आफ्टर 6 ईयर्स. 6 ईयर्स बाद हमें पार्ट 2 देखने को मिलता है और पार्ट 1 आपको 1678 में मिलता है. लेट्स सी आवर समरी. ठीक है, अब सैल्वेटेशन मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताया है. ठीक है, सो पिलग्रिम प्रोसेस इज अ क्रिश्चियन एलेगरी टेल्स द स्टोरी ऑफ अ क्रिश्चियन. देयर वाज अ क्रिश्चियन मैन और इन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं और ये सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से कैलेस्ट्रियल सिटी की तरफ मूव करते हैं. जो कैलेस्ट्रियल सिटी है ये एक हेवन है और इसमें भी जो भी चैलेंजेस आते हैं उसकी बात की जाती है. ओके, जिसमें फ्रेम्ड है ड्रीम explained by the narrator. If I talk about the narrator, who is the narrator in this story? So John Bunyan himself is the narrator. Okay, so if there is a question who is the narrator of this work, then John Bunyan himself is the narrator. Okay, Bunyan started the bull, why I have told you. Or if there is a question that name the prison where he was writing this work. So the name of the prison is Bedfordshire Country Prison. Okay, this is the name of the prison. Maybe there is a question from here. Okay, और ये क्यों था, consequences of violating the Convertile Act, और इसी एक्ट को बोलते हैं. There is one more act, Tax Act. I have already covered this thing in my previous lecture. If you haven't gone through it, please go through it. Okay, you will have an idea. सो इस एक्ट के तहत इनको जेल होती है और रिलीजियस सर्विस आउटसाइड द चर्च ऑफ इंग्लैंड से इन्हों प्रोहिबिटेड कर देते हैं. प्रोहिबिटेड मतलब हटा दिए जाते हैं और जेल हो जाती है इनको. तो ये प्लॉट शुरू होता है एक सपने से शुरू होता है, एक ड्रीम देखते हैं ये. ठीक है, ठीक है. एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, इसमें एक फिगर आता है जिसका नेम आता है एवेंगेलिस्ट. नाउ एवेंगेलिस्ट कुछ याद आ रहा है? प्लेस ऑफ बर्थ क्या थी? थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता नाम आपको दिखेगा. ठीक है, टू लीव द सिटी ऑफ डिस्कशन एंड जर्नी टुवर्ड्स द कैलेस्ट्रियल सिटी विच दिस इज हेवन. एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं हेल टू हेवन. Spiritual journey to hells to heaven. The name of the hell is city of destruction and the place of heaven is celestial city. ठीक है, अब ये सपना देखते हैं तो अब ये जर्नी शुरू होगी. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, आपको देखना है कि ये कहाँ कहाँ से जाते हैं. तो अब ये जर्नी शुरू होती है. ठीक है, अकेले शुरू होती है, कोई इसके साथ नहीं होता है. ये सबको छोड़ के जा रहे होते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं. ठीक है, सबसे पहले जगह आती है जिसका नाम है स्लो ऑफ डेस्पॉन्ड. ये स्लो ऑफ डिस्पॉन्ड एक स्वॉर्म है. स्वॉर्म मतलब जहाँ एक तालाब होता है वहाँ पे बहुत सारे पौधे वौधे आ जाते हैं, थोड़ा सा दलदल टाइप का हो जाता है. ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिसअपियर बट सेव्ड, मतलब वो बच जाते हैं. इफ देयर इज एन क्वेश्चन व्हाट इज दिस स्लो ऑफ डेस्पॉन्ड, इट इज अ स्वैम्प रिप्रेजेंटिंग डिस्पेयर एंड इट इज सेव्ड. ठीक है, नाउ अनदर थिंग इज दैट वर्ल्डली वाइज मैन.
वर्ल्डली मतलब दुनिया से बहुत मतलब रखने वाला एक वाइज मैन अब इनसे मिलता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एडवाइस करता है इनको कि प्रैक्टिकल पाथ लो हैप्पीनेस की तरफ विदाउट रिलीजन, रिलीजन को मत मानो और प्रैक्टिकल पाथ लो हैप्पीनेस की तरफ। और बट रिलीजन क्रिश्चियन रिजेक्ट दिस एडवाइस, और ये एडवाइस को नहीं मानते हैं, फिर ये आगे बढ़ते हैं। और फिर गुडविल एंड इंटरप्रिटेट, ठीक है। अब ये जो क्रिश्चियन है ये रिसीव करता है शेल्टर फ्रॉम गुडविल एंड इज इंस्ट्रक्टेड टू विजिट द हाउस ऑफ इंटरप्रिटेटर। ये जो नरेटर है जो कि जॉन बनियन हिमसेल्फ है, ये अब आगे चलता है और एक शेल्टर लेता है। कहाँ पे लेता है, गुडविल में शेल्टर लेता है। और इसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप हाउस ऑफ इंटरप्रिटेटर में जाइए और आप वहाँ पे बहुत सारे रिलेशन सीखते हैं अबाउट फेथ के बारे में, ठीक है। देन वी हैव द बर्डन फॉल्स, ठीक है। अब ये एक बर्डन फॉल्स एक जो चीज़ है, ये क्या है, ये जो क्राइस्ट टॉम्ब है एंड क्रॉस एंड अ सर्टिफिकेट टू एंटर द क्लस्टर सिटी इज हैंडेड टू हिम। जब ये चीज़ें पार कर लेते हैं गुडविल एंड इंटरप्रिटेटर और ये विजिट कर लेते हैं हाउस ऑफ इंटरप्रिटेटर, देन ये चलते हैं आगे की तरफ और इन्हें एक सर्टिफिकेट और यू कैन से पास मिलता है। किस चीज़ का पास, कैलेस्टियल सिटी जाने का पास इसको हैंडेड कर दिया जाता है। बट जब ये मिल जाता है इनको तो दिक्कत तब आती है जब ये खो जाता है, ये लॉस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, ये नींद पड़ जाते हैं और कोई ये सर्टिफिकेट वहाँ से इनके पास से ले जाता है। बट जब वो इधर उधर ढूंढते हैं, री अप्रोच करते हैं, तरह तरह से लोगों से पूछते हैं कि आपने मेरा पास देखा, आपने पास देखा, तो उसमें से बहुत मेहनत करने के बाद ये इवेंचुअली इनको मिल जाता है, फिर से पास ये पा लेते हैं। फिर ये एक जगह से आते हैं द प्लेस ऑफ ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर प्लेस ऑफ ब्यूटीफुल, अब ये यहाँ पे शेल्टर लेते हैं। प्लेस ब्यूटीफुल वेयर मीट्स 4 मिस्ट्रेस हु टीचेस हिम स्पिरिचुअल लेसन्स। अब यहाँ पे जो एक 4 मिस्ट्रेस होती हैं वो इन्हें सिखाती हैं, क्या सिखाती हैं, स्पिरिचुअल लेसन सिखाती हैं, ओके। अब ये आ चुके हैं आगे और अब आते हैं द वैली ऑफ ह्यूमिलेशन में। और फिर ये वैली ऑफ ह्यूमिलेशन में आते हैं जहाँ पे ये जो हमारे नरेटर है जो प्रोटोगनिस्ट हिमसेल्फ हैं, ये टेरिफाइंग बाय अपोलियन अ डेमन एंड डिफीट्स हिम इन द बैटल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वैली ऑफ ह्यूमिलेशन में जो एक डेमन से उनकी लड़ाई होती है उनका क्या नाम है, अपोलियन इज द करेक्ट आंसर, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। अब जब ये डेमन डिफीट्स हिम इन द बैटल, जब ये हमारे प्रोटोगनिस्ट उसको डिफीट कर देते हैं, फिर ये और आगे की तरफ चलते हैं। अब ये और आगे की तरफ चलते हैं तो अब इन्हें मिलती है वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, जो कि बहुत ही डेंजरस होती है, ओके। एंड डार्क वैली होती है फिल्ड विद डेमन्स एंड मॉन्स्टर्स, दानव से भरी हुई होती है, वैली ऑफ शैडो ऑफ गॉड्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम वर्ल्ड हैं यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं। तो जो खराब लोग हैं उन्हें को ऐसे डेमन से हम कंपेयर करते हैं, वैसे ही इस वक्त में कुछ इसी तरह से बताने की कोशिश की गई है। जब ये वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ से गुजरते हैं, बहुत सारे जो बुरे लोग होते हैं जो पड़े हुए रहते हैं वो इनसे टकराते हैं, मिलते हैं, ठीक है। बट ये अपनी रास्ता को भूलते नहीं हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये आगे की बढ़ते बढ़ते तरफ एक जगह जाते हैं, द वैनिटी फेयर। द वैनिटी फेयर, it is a very important work of a particular writer. You have to tell me in the comment section what is the name of the writer who have written this work, the Vanity Fair, okay। तो यहाँ पे जो भी इन्होंने इतनी चीज़ें मेंशंस की हैं इसमें से द वैनिटी फेयर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी इनका फेथ जनरेट हो चुका है, इन्होंने अभी एक राज डेमन को हरा कर आया हुआ है, अब इनके अंदर एक भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा फेस हो चुका है, ठीक है। और ये अब चाहते हैं कि भगवान से हम जल्द से जल्द मिल ले और ये मार्टराइड शहीद हो जाएं, उन सारी बुराइयों को ख़त्म करके शहीद हो जाएं, ठीक है। बट नहीं, बट उन्हों को लगता है कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो हमें और आगे जाना है। और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं कुछ करके और कंटिन्यूस इस जर्नी टुवर्ड्स द कैलेस्टियलियन सिटीज़। सी
after the faithful's death, a hopeful joins Christian on his journey. So see, आपको मैंने बताया था एक कंपेनियन पहले मिला हुआ था जिसका, ठीक है, वो अब मर चुका होता है. See, there is a two person, one is faithful and another one is hopeful. So now this person, faithful's death, then hopeful's joins the Christian on his journey. And now let's see, by the end and the condemnation, Christian rejects the worldly temptations. जो भी हमारे ये pleasure things हैं इस दुनिया में, बहुत सारे आनंद लेने की वस्तुएं हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं. और जब एंड आता है तो यूज़ रिलीजन्स फॉर पर्सनल अगेन. दे ऑल्सो रिजेक्ट द ल्यूर ऑफ डेमन्स हु टेम्प्टेड देम टू रिचेस. बहुत सारे लोग होंगे आपको बोलते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो इतने पैसे हो जाएंगे, तरह तरीके की लालच देते हैं और आपको जहाँ से में ले लेते हैं. ठीक इनकी तरह वैसे ही होता है. ठीक है, ये सब हमने देख लिया. अब हम सीधे चलते हैं कि कन्फ्रंटिंग इग्नोरेंस मिलता है इनको. एक इग्नोरेंस ये मिलता है कि आप कह सकते हैं एक मैन होता है जो कहता है अ गुड लाइफ अलोन इज इनफ फॉर सल्वेशन. अगर एक अच्छी लाइफ है तो ये काफ़ी है मोक्ष प्राप्ति के लिए. बट ऐसा नहीं है और ये रिफ्यूट कर देते हैं, नहीं मानते हैं और ये आगे बढ़ते हैं कि भाई नहीं जीना अच्छी लाइफ. और ये फाइनल जर्नी पे आते हैं और फाइनल जर्नी आपको पता ही होगी, कैलेस्टियल सिटी पे आते हैं. और लास्ट इज लैंड ऑफ बेलुआ नियर द कैसे दे मस्ट क्रॉस द रिवर टू इंटर. एक नदी आती है, ठीक है, इस नदी कहाँ पे आती है, लैंड ऑफ बेलुआ में आती है. बट क्रिश्चियन स्ट्रगल्स टू क्रॉस इट. अब कोई ब्रिज नहीं होता है, कैसे पार करें, तैर के पार करना पड़ेगा, बड़ी नदी होगी, कैसे पार करेंगे. अब जो होपफुल होता है वो इनकरेज करता है with him Christian love and Christian emerge from the water safely. और इसकी मदद से होप रखता है कि मैं पार कर सकता हूँ और ये पार कर लेता है और फाइनली इसकी डेस्टिनेशन पे ये अराइव करता है. और वेलकम करा जाता है कैलेस्टियल सिटी में इनका, क्योंकि इनके पास क्या होता है, सर्टिफिकेट होता ही है इनके पास और ये संघर्ष से पहुँच चुके होते हैं. इनका बहुत वार्म वेलकम होता है वेदर नीज फाइनल फुलफिलमेंट. ठीक है, और ये इस तरह से पहुंच जाते हैं. ये मैंने आपको समरी बता दिया है. अगर आपको टेक्स्ट पढ़ना है आप टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, हर जगह अवेलेबल हुई है टेक्स्ट. ओके, I have already mentioned you the important place in the pilgrim process, but if you want me, so here are some more important locations representing stages and challenges in Christian spiritual journey. I have told you all the important place. Just have a final look on it. सो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से ये अपनी स्टार्ट होती है. सबसे पहले स्लो ऑफ डिपॉन्ड, माउंट सनाई, ठीक है, एक थ्रेटनिंग डरावना माउंटेन होता है नियर विलेज ऑफ मॉरलिटी. ठीक है, देन विकेट गेट इज देयर, हाउस ऑफ इंटरप्रेटर इज देयर, हिल डिफिकल्टीज ही फेस्ड, हाउस ऑफ ब्यूटीफुल, वैली ऑफ ह्यूमिलेशन, ओके, वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, Valley of Shadow of Death, Vanity Fair is there, the Celestial City Final, the ultimate destination for pilgrimism representing heaven located in the Mount Zion. You may be asked what is the name of the mountain, so the right answer is the Mount Zion. Okay, now let's talk about the themes and the symbol in this work. So सबसे पहले salvation is the theme, faith and the obedience is the theme, worldly temptation is the theme, the struggle with the sin is the theme, then the spiritual companion is the theme. Okay, these are the themes. And here comes up, that's all. I hope I am clear to you and you have enjoyed this session. I have covered everything, all the important points. From this work we don't have much characters, just we have places. So you have to remember all these places as well as you have to remember these things when it is first published. Then answer is first published in 1678 part 1 and 1684 part 2. Publisher is the Nathaniel Ponder, later known as Bunyan Ponder, written by the John Bunyan, and genre is Christian allegory. Okay, that's all for this video. Nothing will be gonna ask you apart from it, just be sure. Okay, hope
you are clear. If you have any question, you can drop in the comment section, okay, or you can reach out to me. Okay, so if you want to reach out to me, then how will you reach out to me? You can WhatsApp me, or you can have yeah, you can have my WhatsApp number. You can reach me through the WhatsApp if you need any help on this flowing phone number. Okay, I will be happy to help you. That's all for today's session. Thank you so much for joining me. We'll see you in the next video. In next video, what will we gonna see? See, we will have another important work that is mentioned in our syllabus. What is the name of our next topic? The next topic is Robert Burton, Anatomy of Melancholy. What is the name of the topic? The name of the topic is Robert Burton. We will have an overview of Robert Burton, Anatomy of Melancholy. Till then, take care. Bye bye. See you in the next class. Thank you so much for me joining.